کے علاقے حبیب پورہ میں کچے مکان کی تعمیر کے دوران چھت گرنے سے 3 افراد ملبے تلے دب گئے۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق مکان عاشق ول طفیل کا تھا اور تعمیر کے دوران چھت پر ملبہ زیادہ ڈالنے کی وجہ سے چھت گر گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 فوری موقع پر پہنچ گئی، جبکہ چھت گرنے سے 3 افراد ملبے تلے دب گئے، جبکہ مقامی افراد نے ریسکیو کے پہنچنے سے پہلے ہی تینوں افراد کو ملبے سے نکال لیا۔ ریسکیو 1122 نے چاروں افراد کو ابتدائی طبی امداد مہیا کی، جبکہ 3 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی افراد میں 26 سالہ رئیس ولد میاں رندھیر بھاگڑیاں، 31 سالہ بشارت ولد بوٹا بھاگوال، 43 سالہ عاشق ولد طفیل حبیب پورہ اور 30 سالہ دلاور ولد ارشد شامل ہیں۔ چھت گرنے پر ریسکیو 1122 کی 5 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ملک راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق احساس کفالت سینٹر فاضل پور میں خواتین میں امدادی رقوم کی ادائیگی ریٹیلرز اور ایجنٹ مافیا کی ملی بھگت سے مستحق خواتین سے رقم کی ریٹیلرز 1000 روپے اور ایجنٹ مافیا 500 روپے کٹوتی کر رہے ہیں۔ ٹوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ خواتین نے میڈیا کو بتایا کہ ہم صبح سے سینٹر پر رقم لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر تاحال ابھی تک رقوم کے تقسیم کے سلسلے میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ احساس کفالت سینٹر فاضل پور میں ایک خاتون کو رقم دے رہے تھے، مگر جب ہم نے خواتین سے اس رقوم کی تقسیم کے بارے میں دریافت کیا تو سینٹر میں موجود خواتین نے بتایا کہ ریٹیلرز اور ایجنٹ 500 اور 1000 روپے کی کٹوتی کر رہے ہیں۔ انتظامیہ اور ٹائیگر فورس اور سیکیورٹی ادارے نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک کارروائی میں پولیس نے ریٹیلرز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے FIR بھی درج کی تھی۔ ایک بار پھر غریب اور نادار مستحق خواتین سرعام لٹنے لگی۔ احساس کفالت سینٹر فاضل پور میں ڈاکو اور ایجنٹوں کا راج ہے۔ بے سہارا خواتین کو مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سماجی فاصلہ اور ماسک کا کوئی تصور سینٹر میں نظر نہیں آیا۔ فاضل پور کی خواتین چیئرمین احساس کفالت پروگرام محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، کمشنر ڈیرہ غازی خان، ڈپٹی کمشنر راجن پور اور ڈائریکٹر احساس کفالت پروگرام راجن پور سے مطالبہ کیا ہے کہ ریٹیلرز اور ایجنٹ مافیا کے خلاف جلد نوٹس لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی خواتین نے مطالبہ کیا۔ شیر گڑھ کی باؤنڈری لائن کے بالکل ساتھ پتوں کی تھانہ صدر کے SHO شفقت جاوید نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا سرغنہ عالم شیر عرف سلیم اور ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عاقب چودھری سے۔ جی عاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شیر گڑھ کی باؤنڈری لائن کے بالکل ساتھ تھانہ صدر پتوکی کے SHO شفقت جاوید نے کارروائی کی ہے۔ DPO قصور رانا عمران کشور کی ہدایت پر SHO شفقت جاوید، صدر پتوکی اور چوکی انچارج حبیب آباد نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کا سرغنہ عالم شیر عرف سلیم اوڈ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 5 لاکھ نقدی، 5 عدد موٹر سائیکل، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ان ملزمان کے خلاف ضلع قصور کے مختلف تھانہ جات میں ڈکیتی، راہزنی اور قتل کے مقدمات بھی درج تھے۔ گرفتار ملزمان حبیب آباد، گردونوا میں ڈکیتی، راہزنی، رابری جیسی بے شمار وارداتوں میں ملوث تھے۔ DPO قصور نے پولیس کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے اسپیشل ٹیم کے ممبران کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعام اور ترفیعی سرٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کیمرہ مین علی حسنین کے ساتھ محمد عاقب چودھری، نمائندہ آن نیوز، شیر گڑھ۔ شیخوپورہ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ قلت، ذلت اور رسوائی کی چادر ہمارے سروں سے تب تک نہیں اترے گی جب تک ہم بدعنوانیوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ آج نے 249 کے الیکشن کے نتائج چیخ کر بتا رہے ہیں، عوامی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب تک عوام اور عوامی فیصلوں کی اہمیت نہ ہوگی، یہ آمرانہ کھیل چلتا رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ریاض الوی، شہباز گجر، شیخ ریاض احمد، عثمان ڈار، یوسف الوی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اختر ڈار نے کہا کہ بعض کرپٹ رہنما اپنے مفاد اور کمائے ہوئے مال کی بقا کے لیے پتلی کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بدعنوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ہم بدعنوانیوں کے سپورٹر ہیں، لہٰذا ہمیں احساس، ادراک اور ارادے کے ساتھ سب سے پہلے ان کی سپورٹ بند کر کے خود احتسابی کے عمل کو آگے بڑھانا ہوگا اور جزا اور سزا کو فوکس کرنا ہوگا، تب ہی امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور صدر انجمن تاجران لنڈا مارکیٹ خادم حسین روڈ میاں محمد لطیف نے کہا ہے کہ PTI کی حکومت نے عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی کا تحفہ دیا۔ آج کا مزدور 2 وقت کی روٹی کما کر خود اور بچوں کو کھلا نہیں سکتا۔ عام شہری بیماری کی صورت میں اپنا علاج معالجہ کروا پانے سے قاصر ہیں۔ سب سے بڑی بیماری بھوک، جس کو مٹانے کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کی بجائے ختم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں جتنا مزدور آج پریشان ہے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ رمضان المبارک میں مزدور طبقہ صرف پانی سے سحری اور افطاری کر رہے ہیں، وہ بھی صاف نہیں ملتا۔
तब्दीली की दावेदार हुकूमत ने लेबर को जिंदा दरगोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हुकूमत ने मसाइल हल करने के बजाय मसाइल में मजीद इजाफा किया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता, अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते, क्योंकि यह हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत साबित हुई है और उसने सवाए अवाम की तकलीफ में इजाफे के अब तक कुछ नहीं किया। हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों ने अपनी रही सही साख्त भी तबाह कर दी है। शकुबरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन की जिलाई सदर बिनिश कमर डार ने कहा है कि नवाज लीग के वोटर्स इंतखाबी धांधली करने वालों को पहचान चुके हैं। कराची के जिमनी इंतखाब की सीट मिफ्ता इस्माइल ने जीती, नताइज तब्दील किए गए, जिन्हें तस्लीम नहीं करते ना ही डस्का 2 ये ट्रेलर चलने देंगे। नवाज लीग के कायदीन धौंस धांधली के हमेशा खिलाफ खड़े हुए हैं और वोट को इज्जत दो का बयानिया आज भी हमारे लिए मशले राह है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग के कारकुन इंतखाबात में बक्से चोरी करने वालों का ताकुब मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। वोटरों ने वोट को इज्जत देने का जो अज़्म कौम ने कर रखा है, वो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दिया गया नज़रिया है, जिस पर हम कारबंद रहेंगे और अवाम भी इस नज़रिए के तहत हर इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेगी। जालसाजों के दिन चले गए। मौजूदा हुक्मरान जिस जालसाजी के सहारे मुसल्लत हुए, अब दोबारा ये सब चलने नहीं दिया जाएगा। कौम ने 3 साल अनसिलेक्टेड हुक्मरानों को झेला है। इकॉनमी तबाह हो चुकी है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है। इस सब के बावजूद हुक्मरान इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, जिनका मजीद बरसरे इक़्तिदार रहना किसी सूरत मुल्क को कौम के मफाद में नहीं। शकुबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सूबाई सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि हुकूमत एहतसाब के मामले में कोई दबाव कबूल नहीं करेगी। अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ साजिशों से उनकी जमहूरियत पसंदी वाजे हो गई है। पूरी दुनिया में जब मुल्क को बैरूनी मसाइल का सामना हो तो अपोजिशन जमातें हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होकर अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन करप्शन ज़दा जमातें अब भी एहतसाब से बचने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन के बुतों को तोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। शरीफ खानदान और जरदारी फैमिली की भी बारी के बाद दीगर करप्ट अनासिर भी एहतसाब के शिकंजे में आएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी सियासी मौत मर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ शरीफ खानदान ही नहीं, जरदारी समेत उनके कर्ता धर्ताओं ने भी करप्शन की इंतहा की। अवाम अब खोटे खरे की पहचान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के सर है, जिसे कराची के ज़िमनी इंतखाबात पर उठने वाला सवालात का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपीपी सियासी, इखलाकी और कानूनी तौर पर मुनहदम हो चुकी हैं। इन जमातों की क़यादत अरबों डॉलर जब्त होने के डर से किसी भी हद तक जा सकती है। ये जमातें अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। पंचगोल के मुख्तलिफ देहातों के लिए किरण फाउंडेशन के डायरेक्टर मैडम सबीना खत्री की हिदायत पर किरण फाउंडेशन एंड अबू फैसल ट्रस्ट कराची की जानिब से ओस्ट वेलफेयर के टीम ने मुश्तरिका तौर पर राशन तकसीम किए गए और छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने बांटे गए। राशन तकसीम के दौरान किरण फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर सोहराब बलोच, एडमन हारिस बलोच, अदनान बलोच, आरिफ बलोच, मैडम साबरा, अबू फैसल ट्रस्ट के टीम मेजबान अमान गिचकी, सिराज गिचकी भी उनके हमरा थे। ओस्ट वेलफेयर पंचगोल की टीम ने दिल खोल कर ईमानी जज्बे के साथ राशन तकसीम के दौरान खिदमत की। इस मौका पर ओस्ट वेलफेयर की टीम ने खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किरण फाउंडेशन एंड अबू फैसल ट्रस्ट की जानिब से भेजे गए राशन और खिलौने पंचगोल की तहसील गवागोर, काटागरी, पुल आबाद और दीगर कुचाजात इलाकों में तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे, इससे पहले किरण फाउंडेशन ने कई इलाकों में राशन, खिलौने और जिंदगी की दीगर जरूरियात के सामान तकसीम किए गए थे। इस मौके पर किरण फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर सोहराब बलोच ने मीडिया से इंटरव्यू देते हुए कहा कि पंचगोल की आमद में हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और खिदमत करने में दिलों को सुकून मिलता है। आज हमारी टीम का पंचगोल के ऐसे इलाकों में आमद हुई है कि यहाँ के लोग इंतहाई गरीब और पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ राशन बांटने का मकसद इंसानियत की खिदमत है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पंचगोल के दीगर कूचा जात इलाकों में राशन तकसीम किए गए थे और हमारी कोशिश होगी कि तमाम जरूरतमंद इलाकों में राशन तकसीम करने के लिए रसाई हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि सब मिलकर इंसानियत की खिदमत को अपना फर्ज समझकर खिदमत को इबादत का दर्जा देकर खिदमत करेंगे। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जंग सरफराज खान बिर्क की जेरे निगरानी पुलिस लाइन जंग में पुलिस अफसरान को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले मरहले में 40 साल से जायद उम्र के तमाम पुलिस अफसरान को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पुलिस का किरदार अहमियत का रहा है। डीपीओ जंग का कहना था कि पुलिस अफसरान की वैक्सीनेशन से अवामुल नास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया जा सकेगा।
डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने अचानक सस्ते रमजान बाजार और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने सस्ते रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश की फ्राहमी, खरीदारों के लिए किए गए इंतजामात और मेयार का जायजा लिया। रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों ने इंतजामात तसल्ली बख्श करार देते हुए सस्ते रमजान बाजार लगाने पर जिलाई इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बादिजान डेप्यूटी कमिश्नर ने वारिस शाह एडिटोरियम में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया और वहाँ तैनात अमले को हिदायत की कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करें। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों के लिए सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। वगन बाईपास नसीराबाद रोड मक्सी पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल और कार आमने सामने टक्कर हो गया। 2 औरतों समेत 5 जख्मी हो गए। एक मासूम बच्ची समेत 2 औरतों की टांगें टूट गयीं। कंबर के रबवासी नसीराबाद के तरफ जा रहे थे। वगन बाईपास पे हादसा पेश आया। जख्मियों में गुलाम नबी चांडियो, मंजूरा खातून, जकिया खातून, आसिया बीबी, मासूम इमरान अली जख्मी हो गए। जख्मियों को वगन अस्पताल पहुँचाया गया। बाद में उनको लाड़काना इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया। वगन थाने पे नामालूम कार ड्राइवर के ऊपर मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले ड्राइवर के पीछे चली गई। सेवन शरीफ के नवाही इलाके भान सईदाबाद में नया SDEO दिलपजीर सोलंगी के खिलाफ और गैर एलानिया लोड शेडिंग, रोजेदार और कारोबारी परेशान। अपने हाथों से डी फिटिंग फॉल्ट करके बिजली को 16 क्लाक बंद किया जाता है। इस वजह से आज सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP के ओहदेदार कारकुनों भान शहर से मुजाहरा करके भान प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। सेवन शरीफ के नवाही इलाके भान सईदाबाद में हेस्को वापडा की नाअहली सबब आज सिंध यूनाइटेड पार्टी के ओहदेदार अली असगर शाहानी, अली रजा चन्ना, इरशाद शाहानी, मेहरान लुगारी, मीर अली असगर पिन्होर, मुनीर अहमद शाहानी और दीगर कारकुनों ने SDO भान सईदाबाद दिलपजीर सोलंगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके भान सईदाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना देके मीडिया के सामने कहा कि SDO भान की हद में आने वाले 11,000 वोल्टेज के कनेक्शन में अपने हाथों से डी फिटिंग फॉल्ट का जवाब दिलाकर बगैर लोड शेडिंग के लाइट बंद करना रोज का मामूल बन गया है। इस हवाले से किसी खुफिया वापडा इलेक्ट्रिशियन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि हेस्को वापडा SDO के हुक्म से उसके करीबी मनपसंद वापडा अमलदार अपने हाथों से डी फिटिंग फॉल्ट बनाकर हर रोज एक जंपर काट कर लाइट को हाई वोल्टेज तो कभी बिल्कुल ही लो वोल्टेज भान सईदाबाद की आवाम का कहना है कि इस बाबरकत रमजान महीना आने शर्त ही गैर एलानिया अपने हाथों से बनाई गई लोड शेडिंग करके कारोबारी हवाले से बहुत ही परेशान किया है। वापडा एक्सियन समेत तमाम वापडा से वाबस्ता आला ऑफिसर्स को पुरजोर अपील की जाती है कि जल्द अज जल्द इस बात का नोटिस लेकर हमें इस मुश्किलात से दूर किया जाए। As myself is Arshad Ali Shahani, I am a citizen of Ban Saidabad. I am living here in Ban Saidabad. Today we all the people have gathered for the strike against the maladministration of the WAPDA. And here today the HESCO administration is doing the corruption. They are asking the people that give us the money and we will return you the light in return. But their administration is failed, and here we say that our Sindh government has also failed at the state. The central government is infidel. They cannot do for the public. We public will strike and we will make the protest against the maladministration, and we will go toward the higher authorities for our basic needs. Hence provide us the facilities of the light as well as the water supply and other facilities of the basic life. Thank you very much. निज़ाम बावरी महिरबानी जेको असांजो पुरअमन मुज़ाहिरो आहे हिकु वापडा जो नाल SDO उन जे ख़िलाफ़ु आहे। असांजो 21 रोज़ो आहे त मुसलसिल लाइट कान्हे का, रोज़ेदार वेचारा ईअं रोज़ा रखनि था। ऐं भलारे रमज़ान जहिड़े महीने में 20 कलाक लोड शेडिंग करे वेठो आहे ऐं ॿार वॾेरनि जो अदा कंदे वेठो आहे। उन्हनि खे रिलीफ ॾियो आहे कंहिं ग़रीब खे। भला रमज़ान जहिड़े महीने में रिलीफ नथो ॾे। असां अपील था कयूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान खां, सेबको चीफ सखर खां, हिते नाल वापडा जो घटायो वञे। महिरबानी। निज़ाम भाई, जैसे कि आज हमारा एहतजाज SDO भान और उसके जो करप्ट जो नायल अमले है उसके खिलाफ आज सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनों ने सरापा एहतजाज किया है भान सईदाबाद में। यहाँ के शहरियों का और सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि सुबह सहरी के टाइम पे SDO भान और उसका करप्ट अमला लाइट बंद करता है और शाम को इफ्तारी वाले टाइम पे लाइट फराहम करता है।
हम इस ऐसे चीज़ की मजम्मत करते हैं और आला इदारों से अपील करते हैं करप्ट एसडीओ भान को फिलफौर हटाया जाए। आज हमने सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनों ने सरापा एहतजाज किया है। अगर एसडीओ भान को नहीं हटाया गया तो सिंध यूनाइटेड पार्टी ठीक एक हफ्ते के बाद शटरबंद हड़ताल का सद देगी। जिला शेखुपुरा और उसकी 5 तहसीलों में शहरियों और कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले अमले को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए 11 वैक्सीनेशन मराकज कायम किए गए हैं, जहां दिन और रात की शिफ्टों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शेखुपुरा से शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए जिला भर में तकरीबन 44,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिनमें 10,275 शहरी और कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सरंजाम देने वाला अमला और हेल्थ वर्कर वैक्सीन की पहली जबकि 4,100 से जायद शहरी और फ्रंट लाइन वर्कर दूसरी डोज लगवा चुके हैं। शहरियों ने भी वैक्सीन की मुफ्त फराहमी पर हुकूमती इक़दामात को सराहा और कहा अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फलाही रियासत का ये काबिल सताइश काम है। तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दामात भी किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है यहाँ से। ये हमारा जो बादशाह स्टेडियम यहाँ पर वैक्सीन सेंटर बना हुआ है, बहुत बेहतरीन क्लास किस्म के इंतज़ामात हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अवेलेबल है और इनकी 2 शिफ्टों में जो काम कर रहे हैं वो बड़े कदर की निगाह से हम सबको देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जी पहले अवेयरनेस कम थी लोगों में, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है और वैक्सीन के लिए रश है और वैक्सीन लगाने के लिए वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामात जो है ना वो काबिल सताइश हैं। इसका क्रेडिट हमारे DC साहब को, MS साहब को, CO हेल्थ को, इन सब को जाता है। मैं समझता हूँ कि जी हम सबको इनके साथ ताउन करना चाहिए। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लोगों की हेल्थ और लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए ये एक मिसाली कदम है और वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बेहतरीन इंतज़ाम है। बात शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील कंबर अली खान की। तहसील कंबर अली खान की पनवारू और मुख्तलिफ माइनर्स में चावल की फसल के लिए अक्सर पानी की ज्यादा कमी रहती है। उसका मेन सबब ये है कि नहरों की खुदाई नहीं करवाई जाती। वार बिराज से निकलने वाली नहरों में शामिल नंबर 1 पनवारू माइनर, नंबर 2 नसीर माइनर, नंबर 3 भंगर माइनर, नंबर 4 लंडी माइनर, नंबर 5 तनिया माइनर, नंबर 6 कालरी माइनर, नंबर 7 कुइज माइनर, कोनर माइनर, नंबर 8 नवाब माइनर, नंबर 9 लंडी माइनर, नंबर 10 टेल माइनर में अक्सर पानी का बहरान रहता है। उसका मेन सबब ये है कि नहरों की खुदाई नहीं करवाई जाती। जब नहरों की खुदाई का टाइम आता है तो जिम्मेदार हजरात सुकून की नींद में सोए हुए होते हैं। जब पानी नहरों में आता है और पनीरी का काम शुरू हो जाता है तो पानी की शदीद कमी की वजह से किसान दिन रात जमीन को पानी देने में मसरूफ रहता है। पानी की किल्लत के सबब लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन जाते हैं, यहाँ तक कि काफी लोग मारे भी जाते हैं। मुतल्लिका महकमे से और हुकूमत सिंध से अपील की जाती है कि नहरों की खुदाई के तरफ तवज्जो दी जाए, जिस पर मुल्क और कौम की तरक्की वाबस्ता है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। इस मुल्क की मईशत में बेहतरी का अहम किरदार काश्त है। काश्तकारों को सहूलियत फराहम करके किसानों की बेचैनी खत्म की जाए। मजीद छोटे बड़े जिम्मेदारों के जागने का वक्त है। सिर्फ कसूरवार किसान को न ठहराया जाए। अपने हिस्से का काम खुद करके नहरों की खुदाई के लिए आवाज उठाकर नहरों की खुदाई करवाएं, ताकि किसानों की आपस में लड़ाइयाँ और नफरतें न हो सकें। प्यार और मोहब्बत की फिजा हमेशा कायम दायम रहे। इसमें ही मुल्क और कौम की बेहतरी है। शुजाबाद ग़ज़वा बदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़े जाने वाले इस्लाम और कुफर का पहला मार्का है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़वजल की मदद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतर हिकमत अमली से कामयाबी मिली। इमाम शाह अहमद नूरानी ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो किरदार अदा किया वो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। दुआ है अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक की बरकत से कोरोना वायरस जैसी वबा से पाकिस्तान समेत आलमी इस्लाम को निजात अता फरमाए। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मौलाना हाजी आशिक अली खान कादरी की रिहाइश गाह पर योम बदर और योम विलादत इमाम नूरानी के मौका पर सालाना नूरानी दावत इफ्तार का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए JUP के मरकजी रहनुमा मौलाना हाजी आशिक अली कादरी, सजादा नशीन दरबार फूल शाह पीर अली ताहिर खान कादरी, जिलाई सीनियर नायब सदर JUP अलामा मोहम्मद इरफान कादरी ने कहा, ग़ज़वा बदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में बातिल के खिलाफ लड़े जाने वाला सबसे पहला मार्का है, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला
हिकमत अमली और नुसरत खुदाबंदी से कामयाबी हासिल हुई। ग़ज़वा बदर की असल फतह का सबब नुसरत अल्लाह था। इस्लाम की शानदार फतह ने मुसलमानों को अरब की एक अजीम कुव्वत बना दिया। मौजूदा हालात में उम्मत जिन मसाइल का शिकार है उनके हल के लिए शुहदाए ग़ज़वा बदर से रहनुमाई की जरूरत है। हम आज के इस पुरमसरत मौका पर कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी को खिराजे तहसीन पेश करते हैं और आपके मिशन को जारी रखने का अज़्म करते अल्लामा इरफान कादरी, हाफिज शिराज हैदरी ने कहा, रमजानुल मुबारक अल्लाह ज़ू जल को राजी करने का बाबरकत महीना है। दुआ है अल्लाह पाक रमजान करीम की बरकत से कोरोना वायरस जैसी वबा से वतन अजीज पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम को निजात अता फरमाए, आमीन। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद नईम, हाफिज शिराज हैदरी, हाजी कामरान भट्टी, कारी सादिक हुसैन, वजीर अहमद नूरानी, राव मोहम्मद नदीम समेत दीगर ने शिरकत की। MNA खान इब्राहिम खान के दरीना साथी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची के ज़िमनी इंतखाबात पर उठने वाले सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। नवाज लीग और PPP इंतखाबात की दौड़ में शामिल ही नहीं थे। PTI का वोट बैंक तब्दील किया गया, जिस पर पूरी कौम तशवीश का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान शफाफ इंतखाबात के हामी है और उनके इस नजरिए को तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत भरपूर इंतखाबी इस्लाहात यकीनी बना रही है, जिसके बाद इंतखाबी धांधली मुमकिन नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को गरीब की बेहतरी के लिए ही अवाम ने हुकूमत दी है। मुल्क में महंगाई साबिका हुकूमत की लूट मार का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस पर काबू पाने के साथ साथ अवाम को रोजगार की फ्राहमी भी जरूरी है, जिसके लिए हुकूमत हर सतह पर इकदाम उठा रही है। अपोजिशन जमातें फकत बयानबाजी तक महदूद रहने की बजाय अमली तौर पर अवामी खिदमत में हुकूमत का साथ दें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सियासी तौर पर मुकम्मल बेरोजगार है। अवाम को रिलीफ देने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को गरीब की बेहतरी के लिए ही अवाम ने हुकूमत दी है। मुल्क में महंगाई साबिका हुकूमत की लूट मार का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस पर काबू पाने के साथ साथ अवाम को रोजगार की फ्राहमी भी जरूरी है, जिसके लिए हुकूमत हर सतह पर इकदाम उठा रही है। अपोजिशन जमातें फकत बयानबाजी तक महदूद रहने की बजाय अमली तौर पर अवामी खिदमत में हुकूमत का साथ दें। शुजाबाद चेयरमैन बल्दिया हरदिल अजीज शख्सियत डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत की जिम्मेदारी पाक अफवाज के हाथों में है, जिसकी काबिलियत और पेशा वराना सलाहियतों को सारा जमाना मोतरिफ है। हमारी जरियो बहादुर फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब खुशगवार ताल्लुकात का हामी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत बैनुल अक़वामी सतह पर पायदार अमन के क़याम की खातिर भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पूरी दुनिया में अपनी पेशा वराना काबिलियत का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि वक्त ने साबित किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द स्टेट नहीं बल्कि दहशतगर्दी के शिकार मुमालिक में सफ़े अव्वल पर है, जिसके सिक्योरिटी अदारों और अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान सबसे ज्यादा शहादतें और कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मगरबी दुनिया के इंतहा पसंदों को नामूसे रिसालत पर वार करने और आलमी अमन दाव पर लगाने के हवाले से मुसलमानों से मुआफी मांगनी चाहिए। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और उम्मीदवार बराए MPIPP 172 फातिमा चंधर ने मियां अवैस अंजुम डेप्यूटी सेक्रेटरी OIC के हमरा अपने हल्के रायविंड में मकामी खवातीन में ईदी तकसीम की। इस मौका पर फातिमा चंधर ने खिताब करते हुए कहा कि मैंने वादा किया था कि अपने हल्के की आवाम की हर खुशी गमी में शामिल रहूंगी, लिहाजा ईद उल फितर की आमद से कबल अपने हल्के की माओ बहनों में ईदी तकसीम करने आई हूँ। फातिमा चंधर ने कहा कि मेरे कोऑर्डिनेटर नदीम अशरफ सिंधु ने रायविंड के बुनियादी मसाइल, जिनमें अहम पीने के साफ पानी की फ्राहमी और सेवरेज के मसाइल अहम हैं, से आगाह किया है। मैं बहुत जल्द वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार को आगाह करूंगी और उन मसाइल के हल करवाने के अहकामात लेकर शहर के लिए खुशखबरी लेकर आऊंगी। फातिमा चंधर ने मियां अवैस अंजुम और नदीम अशरफ सिंधु के हमरा सस्ता रमजान बाजार का विजिट किया, लोगों से सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया, जबकि इंचार्ज सस्ता बाजार शहजाद साबिर ने मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। तहसील नसीराबाद से खबर शामिल करते हैं। नसीराबाद शहर में दिन दिहाड़े पुलिस थाने के सामने नामालूम चोर चावल के व्यापारी लाल चंद की दुकान के टेबल के लॉकर में पड़े हुए 3 लाख रुपए ले उड़े। उनसे 4 दिन कबल नामालूम चोर सेप्को मुलाजिम असदुल्ला खोगर की 125 घर के सामने खड़ी हुई वो चोर ले गए। उनसे पहले भी निजामुद्दीन शेख से 3 लाख छीन कर ले गए। मुसलसल चोरियों और डकैतियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। व्यापारी लाल चंद ने मीडिया को बताया कि मेरा दुकान पुलिस थाने के बिल्कुल सामने 20 फीट के फासले पे है, लेकिन नामालूम चोर बगैर किसी खौफ व खतरे से दुकान से 3 लाख ले गए। पुलिस नाकाम हो चुकी है। मजीद उनका कहना था कि हमारी चोरी की गई रकम वापस कराई जाए और चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम सख्त एहतजाज करेंगे।
चांगा मंगा अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हुसनैन मुस्तफाई और नाजिम पंजाब राशिद मुगल की चांगा मंगा आमद। अरशद मुस्तफाई और असलम भट्टी के वालिद मोहतरम की वफात पर इजहार ताज़ियत। अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हुसैन मुस्तफाई और नाजिम पंजाब राशिद मुगल ने चांगा मंगा आमद की, जहाँ पर उन्होंने सीनियर सहाफ़ी अरशद जावेद मुस्तफाई, मोहम्मद असलम भट्टी और अंजुमन तलबा इस्लाम के साबिक सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अकरम रिजवी के वालिद माजिद सूफी मोहम्मद हनीफ भट्टी हमदमी की वफात पर उनकी रिहाइश का मुस्तफाई हाउस में इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि मरहूम ने जिंदगी पाबंद सोमसलात होकर शायर इस्लाम के मुताबिक बसर की। आलमी तनाजुर में बदलते हुए हालात के मुताबिक इस्लाम पसंद कुव्वतों को मनसूबा बंदी करनी चाहिए। वज़ारात औलिया से अरबों रुपए नजराने की रकम सिर्फ ज़ायरीन को लंगर खिलाने पर खर्च कर देने की बजाय तालीम और तहकीक पर सर्फ करके मुल्क और कौम की खिदमत के लिए इनकलाबी इकदाम करने चाहिए। उन्होंने कहा मज़ारात से हासिल शुदा आमदनी से मेडिकल, इस्लामिक और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कायम करके अपनी नस्ल को बैरून मुमालिक महंगी तालीम हासिल करने जाने की बजाय अपने मुल्क में आला मयार की तालीम देकर हर शोबे में आला तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर्स की जमात तैयार की जाए ताकि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो सके। शेखुबरा आबादी फारूक टाउन में सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर गुलाम जिलानी तमन्ना की अकामत गाह पर डकैती की वारदात। मरीजों के रूप में एक औरत समेत 4 डाकुओं का गिरोह घर में दाखिल हुआ। डाकुओं ने तमाम अहले खानों को कमरे में बंद करके घर की तलाशी ली। डाकुओं ने डॉक्टर गुलाम जिलानी की अहलिया लेडी डॉक्टर सदा अतीक को भी कमरे में बंद कर दिया। डाकू घर से 3 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 60,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। थाना सिटी ए डिवीजन ने डॉक्टर गुलाम जिलानी की मदय्यत में डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाड़काना शहर के मोहल्ला मुराद वाहिन की रिहाइश पजीर मस्मात राबिया थीम मीडिया के आगे एहतजाज करते हुए कहा कि 1 साल पहले मेरे शोहर फतेह अली जतोई खैरपुर से लाड़काना वापस आ रहे थे कि राजी दीरा थाना की हदूद में पेशे से खूसा बरादरी के अली डिनो खूसू ने मेरे शोहर की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसकी वजह से गाड़ी उलट गई और मेरे शोहर मौका पर फौत हो गए। पुलिस इत्तफाकी एक्सीडेंट करार देकर केस को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मुखालिफ से पैसे लेकर हमारी FIR नहीं काट रहे थे। थाने का सारा स्टॉप FIR कटवाने की रिश्वत मांगने लगा, जिसमें DSP मसूद आगानी, SHO इजाज मक्सी और उस थाने का ASI रिश्वत लेने में मिले हुए थे। और इस मुतासिर खातून का ये भी कहना था कि पुलिस के सिपाही से लेकर अफसरों तक रिश्वत की बाजार गर्म है और पुलिस रिश्वत के बगैर किसी का भी इंसाफ नहीं करती और हमको भी मजबूरन अपने इंसाफ की खातिर इसी थाने के सारे स्टाफ को रिश्वत अलग देनी पड़ी और इसी थाने के SHO को 25,000 अलग दिए। फिर उसके बाद ही हमारी FIR काटी गई और मैं 5 बार थाने पर गई हूँ, मगर पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही और पूरा साल गुजरने के बाद भी वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए और हम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। मस्वात राबिया थीम ने DIG सखर और SSP खैरपुर को मुतालिबा करते हुए कहा है खुदारा मेरा इंसाफ किया जाए। नालो छा है? अच्छा अदी जो कीअं भला वाक़ियो पेश आयो थोरो हाल अहवाल कजो। अच्छा केतिरो टाइम थियो आहे हुनखे? अच्छा छा ते पियो अचे उहो? सही ॿुधायो। 125 गाड़ी से वो विज्ञान परी भेजे का वो कार दे 10 महीनों का से उन्होंने मना कुछ कयो ना पुलिस पैसा खादा ऐसे नाम से मैं ऐसे से जो एजाज मक्सी FIR थी हां दा FIR थी भैया मां गिरफ्तार थिया ना दा उन्हनि का पैसा तो वठे बाकी गिरफ्तार न थिया। अच्छा हां बस वो पैसा खाए तो बाकी गिरफ्तार न किया थई। गिरफ्तार न किया थी ना दा ना वया थाने दे हां दा 4 चक्कर वया हद मां उठी रखो पाड़ा पटे से हद मां भी उठारे मां भी आने चवन ता वो हद ना है ऐसे इशारो चवे मां बदनो न बदनो अदा वो खबर ना है हाने फोन वो नहीं नथा कने वरी हाने पुशाब ने ता का पैसा बताया वाला ऐसे हां ऐसे शो सा पैसा वठी तो FIR कया घणा होता पैसा अदा 25 है न ला घणा खबर ना बाकी छोकरन के। अच्छा हाने तवा के मुतालबो ता कयो? सखर खैरपुर वारो तालबे का तो बस उन्हनि खे गिरफ्तार कर मेहरबानी करे। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। वेल्डन SHO थाना मियाना गोंदल साजिद महमूद भट्टी ने 1630 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना मियाना गोंदल साजिद महमूद भट्टी ने अफजाल अहमद ASI पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिनमें यासिर अरफात, साकिब इरफान, विकार अहमद कांस्टेबल शामिल थे। मुखबर की इतला पर भोर चौक मियाना गोंदल रेड करके बदनामे जमाना मनशियात फरोश मोहम्मद फैसल वल्द मोहम्मद यार कौम गोंदल के कब्जे से 1630 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा
मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। इंचार्ज थाना मियाना गोंदल साजिद महमूद भट्टी का कहना था कि मेरे थाने की हदूद में कोई बड़े से बड़ा मनशियात फरोश नहीं बचेगा। मनशियात फरोश मुआशरे के लिए एक नासूर है, उनका कला कमा मेरी अवलीन तरजीह है। लिया पुलिस की कोरोना आगाही मुहिम, डीपीओ लिया सैयद नदीम इबाज की जेर निगरानी शहरियों में मास्क तकसीम, एसओपीज पर अमल दरामद की तलकीन। मौजूदा हालात में मास्क न पहनना जुर्म है, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीपीओ लिया। तफसीलात के मुताबिक लिया पुलिस की तरफ से मुसलसल 3 रोज से जिला भर में कोरोना आगाही मुहिम जारी है। अमरोज डीपीओ लिया सैयद नदीम इबाज की जेर निगरानी लिया सिटी के मुख्तलिफ शाहराहों, चौकों और बाजारों में गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल सवारों और पैदल अशखास को मास्क तकसीम किए गए। डीपीओ लिया और दीगर अफसरान ने शहरियों को आइंदा मास्क पहनने और कोरोना एसओपीज पर अमल करने की तलकीन की। डीएसपी सदर रमीज अहमद बुखारी, एसएचओ सिटी मोहम्मद अशरफ माकली, पीएसओ मोहम्मद नदीम, पीआरओ यासिर अरफात और दीगर पुलिस अफसरान और अहलकारान ने मुहिम में हिस्सा लिया। डीपीओ लिया ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लिया पुलिस अपने शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए कोरोना से बचाव के लिए भी कोशा है। इस सिलसिले में जिला भर में लिया पुलिस की मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मौजूदा हालात में मास्क न पहनना जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए लिया पुलिस सरगर्म है। कोरोना की एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों का भी फर्ज बनता है कि वो पुलिस के साथ ताउन को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना जैसी मोहलिक वबा पर काबू पाया जा सके।